Yeah, good morning students. Today we are going to learn how to draw a parallel line to a given line. Okay, so the today's topic is to draw a parallel lines. Okay, now how to draw it? See the question which is there in your practice at 2.3. Okay, the very first question we will start with that. Draw a line L. Okay, so as per the instruction, let's draw the line L. Okay, remember students, it is a line. Okay, so line, it means you have to give two arrows over here. Okay, और जो एरोज मैंने जैसे बनाया वैसे ही ड्रॉ करो. डोंट मेक देम डार्क और समथिंग लाइक दैट. ओके, जो नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए. योर डायग्राम शुड लुक नीट एंड क्लीन. सो उसको एकदम डार्क ओवर राइट बिल्कुल नहीं करना है. Okay, now this is your line L. This is line na, so line means it should have two arrows at the end, so it is unlimited na. Lines means unlimited, you can extend it to anywhere. So this is your line L. Now on this line take point A. Okay, take point A outside the line. So outside this line कहीं पे भी तुम लोग A point ले लो. चलो, I have taken this point A over here. Heard everyone? So I have taken one point A here. Now what we have to do, through point A, ये point से we have to draw a parallel line to this line L. Okay, ये point से हमें parallel line निकालना है. Now how we are going to draw a parallel line through this point? Quite easy. Okay, what you should have? You should have these two टूल्स विथ यू. ओके, दीज आर टू सेट स्क्वेयर्स. इनको बोलते हैं सेट स्क्वेयर. ओके, ये सेट स्क्वेयर है बच्चों. इसको होल्ड करना है लाइक दिस. यू आर गोइंग टू होल्ड इट. देखो ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को और इस लाइन के ऊपर इसको मैंने होल्ड किया लाइक दिस. एंड द सेकेंड सेट स्क्वेयर यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस. ओके, सो दैट ये दोनों इस पॉइंट के बराबर यहाँ पे इंटरसेक्शन ऐसा आना चाहिए. एंड यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. ओके, नाउ जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो प्रॉपरली. दिस इज योर पैरेलल लाइन. ओके, और इस लाइन का नाम तुम्हें जो देना है तुम दे सकते हो. आई एम गिविंग इट एज अ एम. ओके, क्वाइट इजी इट इज. मैं वापस एक बार दिखाऊंगी. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापस रिविजन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बच्चों. देखो, ड्रॉ अ लाइन एल. सो आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन एल अगेन. सो एज पर द इंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू. ओके, सो हियर आई हैव ड्रॉन वन लाइन एल. Now take point T outside a line. So anywhere you can take the point. Consider T point you are taking here. Okay, so this is your point T. Now point should look like a point. इसको बिंदी मत बनाओ. T point should look like a point. पेंसिल को शार्पन करके लेना properly. Then again you have to repeat the same procedure. Okay, place your set square like this here, above the line and just beside this point. Okay, see the position again. I am just showing you the position. It is like this. And your second set square I am going to place it somewhat here. Okay, properly position करना है दोनों को. Properly position करके you have to make a line through it. Okay, and just extend it on the other side as well properly. Okay, don't show that it has broken. इसको ऐसे extend करो and give it any name. Let's say M. So in this manner you can draw the parallel lines, okay, to a given line. Quite easy it is, right? Okay, so let's move towards the next question, students. Your next question, what is that? Okay, what is your next question, students? Your next question is to draw a line M. Okay, so chalo, as per the instructions I will draw the line L first. So line M मैं draw कर रही हूँ.
This is my draw line M. After this, draw a line N. Okay, हमें एक N लाइन ड्रॉ करना है which is parallel to line M. इसको एक हमें ड्रॉ करना है कौन सा लाइन N जो पैरेलल होना चाहिए, पर यहाँ पे कंडीशन है कि लाइन N कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर पे. तो बच्चों ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. सो इन दैट क्वेश्चन व्हाट वी डू ऑलवेज, जब वो लोग बोलते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे निकालो, अभी तक जो ये क्वेश्चंस थे ना, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं था. ठीक है, नो स्पेसिफिक डिस्टेंस वाज गिवन. यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर पे ही निकालो. सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स. हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, हम लोग सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर, कोई भी 2 पॉइंट ले लो. चलो A and suppose B point I have taken here. Now from these 2 points, first what I will do, first I will draw the perpendiculars. So let's draw the perpendiculars first. Perpendicular देखो बच्चों कैसे ड्रॉ करना है. ओके, ये इस तरीके से लाइन पे प्लेस होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है बिल्कुल भी. ए पॉइंट के ऊपर रखा है, सी आई हैव केप्ट इट ऑन अ पॉइंट ए. ये जो पॉइंटर है, दिस आई हैव केप्ट इट हियर एट पॉइंट ए. ओके, प्रॉपरली अबव द लाइन, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है. देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाने वाला. सेम मैनर आई विल डू फॉर बी. चलो बी पे भी करते हैं सेम, देख लो. नाउ व्हाट यू विल डू, on these 2 lines you will take a distance of how many centimeters, 4 सेंटीमीटर. तो चलो देखो मेरे पास स्केल है, स्केल पे मैं कितना डिस्टेंस लेने वाली हूँ बच्चों, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. तो चलो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वी आर गोइंग टू टेक. ओके, सो ये रहा मेरा 4 सेंटीमीटर. ओके, हियर ऑल्सो आई विल टेक द सेम डिस्टेंस विच इज 4 centimeter. Okay, now after taking this distance, just draw the line through these 2 points. Okay, so ये कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था बच्चों, 4 सेंटीमीटर. So this is the distance which we have taken, which is equals to 4 centimeters. So mark the distance by writing 4 centimeter here, and this is your line N. तो हमने N लाइन ड्रॉ किया, इसको पैरेलल ड्रॉ किया M को, और वो कितने डिस्टेंस पे है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन बाय देम, 4 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द वीडियो, सो यू कैन रिवाइंड इट एंड यू कैन अगेन सी हाउ आई हैव ड्रॉन दिस. ओके, तो स्टेप्स इफ यू वांट आई कैन राइट डाउन व्हाट स्टेप्स आई हैव डन हियर. द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन ओनली आई एम राइटिंग स्टेप 1. Step 1 what I have done, draw line M. ओके, मैंने पहले लाइन M को ड्रॉ किया. देन टेक 2 पॉइंट्स. ओके, मैंने 2 पॉइंट्स लिए. टेक 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन लाइन M. तो 2 पॉइंट लिए A और B. थर्ड स्टेप व्हाट आई हैव डन इज ड्रॉ परपेंडिकुलर्स. ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट A and B using what? Using set square. See the video for this. Okay, how I have drawn. And fourth point is take a distance of 4 centimeter on these perpendiculars. ये जो हमने perpendicular ड्रॉ किया, ओके, परपेंडिकुलर के ऊपर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है. ओके, एंड फिफ्थ स्टेप एंड ड्रॉ, लास्ट स्टेप विल बी ड्रॉ लाइन passing through the points.
on the perpendicular. Okay, so in this manner you can draw your perpendicular lines. Alright everyone, so the steps are also included here. You can do these steps and you can draw your perpendicular line. Okay, with this we have finished with your parallel lines and transversals chapter. So students, if you are having any doubts, you can ask anytime. Okay, let's move towards the next lesson, and your next lesson is 7th lesson, variation. Variation is your next lesson, students. Now what is the mean by, there are two types of variations in the lesson. The very first variation is the direct variation. Direct variation, and the next type of variation is your inverse variation. So two types of variations you are going to learn in this chapter, direct variation and inverse variation. Now let me tell you डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है. बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब एकदम सिंपल है. अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है, तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ता है. जैसे कि अगर मेरे को 5 पेन खरीदने हैं, तो अगर मुझे 50 रुपए लग रहे हैं, 7 पेन खरीदने के लिए 70 रुपए लगेंगे. मतलब मेरे पेन का नंबर बढ़ रहा है तो पेन का कॉस्ट भी बढ़ रहा है. मतलब दोनों चीजें बढ़ रही है. सो इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो इंक्रीजेस. दोनों बढ़ते हैं, दोनों भी कम होते हैं. समझ में आ गया? अगर एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हुआ दूसरा भी कम होगा. नाउ व्हाट इज मीन बाय इनवर्स वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या रहता है? एक क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा कम होता है. जैसे कि इफ आई एम हैविंग 4 लेबर्स, ओके, मेरे पास अगर मान लो 4 लेबर्स है और उनको काम खत्म करने के लिए 10 दिन लगते हैं. बट अगर मैंने लेबर्स बढ़ा दिए, कंसिडर कर लो सपोज आई डबल्ड द नंबर ऑफ लेबर्स, तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा. मतलब 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा. इजी है ना? सो इसका मतलब लेबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे. लेबर्स आर इंक्रीजिंग 4 से 8. लेकिन देखो दिन कम हो गए, डेज आर डिक्रीजिंग. डेज तो कम हो रहा है. मतलब वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ लेबर्स आर इंक्रीजिंग बट द नंबर ऑफ डेज आर डिक्रीजिंग. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर इनवर्स वेरिएशन. अभी फिलहाल हम डायरेक्ट वेरिएशन देखने वाले हैं बच्चों. हाउ वी शो डायरेक्ट वेरिएशन? लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. यू विल कम टू नो डायरेक्ट वेरिएशन को दिखाते कैसे. ओके, सो देखो हाउ वी आर गोइंग टू शो डायरेक्ट वेरिएशन. क्वाइट इजी, बहुत इजी है. देखो बच्चों क्या लिखा है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्किल, ओके, इज सरकमफरेंस इज C, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ये सिंबल लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, प्रोपोर्शनल. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो चीज को यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब न्यूमरेटर में. डायरेक्टली हो तो न्यूमरेटर, इनवर्सली हो तो नीचे, मतलब डिनोमिनेटर 1/, ऐसा लिखते हैं. फिलहाल अभी डायरेक्टली है, सो मैं लिखूंगी इट्स रेडियस. सो रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो इट इज रिटन लाइक दिस. अब इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं C. सर्कमफरेंस इज C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. So C is directly proportional to R. ओके, अभी आगे बच्चों ये सिंबल जब निकलता है ना, ये वाला सिंबल, और इक्वल टू आता है तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है. व्हाट वी टेक ऑलवेज इन प्लेस ऑफ दिस? इक्वल टू एंड कांस्टेंट. सो मैंने ये सिंबल निकाला और मैंने इक्वल टू और कांस्टेंट दिया. ऑलवेज रिमेंबर, ये सिंबल जाने के बाद इक्वल टू और कांस्टेंट आता है एंड R remains as it is. सामने वाले को क्या बताना है? K क्या है? सो K is a constant. That's it. बस कोई वैल्यूज नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस यहाँ तक छोड़ देना है. ओके,
I guess, I hope you all are understanding this. Now next, let's start with the next. This is your solution. Now next solution I am starting. Now try to do it on yourself. करके देखो. Consumption of petrol. Okay, consumption of petrol, which is L, and distance traveled by car are direct variation, are in direct variation. Direct variation so एक दूसरे के सामने सामने लिखने का. ओके, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब एक दूसरे के सामने. इनवर्स मतलब ये ऊपर ये नीचे, ऐसा लिखते हैं. पर अभी डायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट बोला तो सामने सामने लिखेंगे. तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार. डिस्टेंस है d. तो इसको अगर मैं लिखने जाऊँ सिर्फ तो ऐसा L, दिस सिंबल डायरेक्ट वेरिएशन का d. Now, as I told you, if this symbol you have to remove, you will take equal to and k along with this. Okay, equal to or a constant and d, and mention that what is k? K is a constant. k क्या है? तो k एक constant है. So k is a constant. I have mentioned that. So done. Up to this only you have to do. Okay. Now let's take the advanced examples. इसके उससे थोड़ा आगे अगर वैल्यूज दिए है तो कैसे फाइंड आउट करने, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. ओके, सो आई एम हैविंग वन एग्जाम्पल हियर. ओके बच्चों, ये एग्जाम्पल से अभी मैं दिखाती हूँ तुम कैसे सॉल्व करोगे. ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स, ऐसे ही तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही डिफिकल्ट आएगा. ओके, पहले मैं इससे स्टार्ट करती हूँ. क्या लिखा है? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. कैसे रीड किया मैंने? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. सो बच्चों हमें ये जब दिया है, देन वी गेट इक्वल टू n k constant and n as it is. What I'll write down? k is what? k is a constant. Then m जो है उसका वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 154. ओके, यही लेना है, बस इतना पार्ट लेना है. देन k I don't know, n I know ना, n is 7. So I put the values of m and n here. पहले वाले में इतना ही पार्ट लेना है, पहले दो लाइन्स. देन 154 मल्टीप्लाई 7 बिकम्स डिवाइड बाय 7. तो चलो 7 से डिवाइड करते हैं. अगर मैंने 7 से डिवाइड किया 154 को, 7 2 ज़ा 14. Again I'll get 7 2 ज़ा 14. I got 22 here for the value of k. Okay, so we got the value of k students here. But क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल्स टू 14. तो हमें 14 जब है n का वैल्यू तो m ढूंढना है. तो मैं क्या करती हूँ, हमारे पास ये सम 2 बार करना है, इसको 2 बार रिपीट करना है. ओके, बिकॉज हमारे पास 2 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. सो अगेन आई विल डू दिस. m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. ओके, now what you will do, in place ये is equals to km. k is what? k is a constant. Now put m we don't know ना, यहाँ पे अभी इस पे आएंगे. okay, this is the first part, this is the second part. समझ में आया? तो ये जो तुम्हारा m है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है. k we are having ना, k is 22. so ये जो k का वैल्यू आया that I can take here. and n का वैल्यू, हाउ मच इज दी n का वैल्यू? 14. ओके बच्चों, तो m इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 14. सो आई गॉट द आंसर 308. ओके, m का आंसर मिला 308. So in this manner you can solve any example. Okay, in the next lecture we will see few more examples from this practice set. Okay, till the time, bye and thank you everyone.